Hi guys, I hope you're all doing fine and preparing well for your CDS 1 2024 एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम अप्रैल 21 को है और इसके लिए सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। CDS एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा चैलेंज है 20% सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना। I'll share with you an effective strategy to clear the exam with good marks. सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। Now, the mode of exam is offline. Number of sections, Indian Military Academy, Naval Academy और Air Force Academy में 3 sections हैं, that is, it is English, GK and Maths. और अगर OTA की बात करें, Officers Training Academy, then you have only English and GK section. Marks कितने हैं टोटल? IMA, INA और AFA के टोटल 300 मार्क्स हैं और OTA जिसके अंदर सिर्फ 2 सेक्शंस हैं उसके 200 मार्क्स हैं। क्वेश्चन सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के देखने के मिलेंगे। लैंग्वेज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वुड बी यूज्ड इन योर पेपर। ड्यूरेशन 2 hours फॉर ईच, इंग्लिश फॉर 2 hours, GK फॉर 2 hours एंड मैथ्स। तो OTA का एग्ज़ाम आपका टोटल 4 hours का होगा। IMA, INA, AFA का एग्ज़ाम आपका टोटल 6 hours का होगा एंड यू विल ऑल्सो हैव 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर द सेम। इन ऑर्डर टू स्कोर वेल इन योर एग्ज़ाम आपको सिलेबस भी अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्पॉटिंग द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आपके वोकैबुलरी में से इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, एरर करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स, nouns, adverbs, क्या हैं, they ask you that in the questions. Close test where you have to fill in the blanks. Prepositions, determiners और general knowledge में Indian history, political science, economics, geography, Indian and world geography, environment, physics, chemistry, biology, current affairs, defense related questions, latest defense acquisitions. Maths में you have arithmetic, algebra, trigonometry, geometry, mensuration, stats, number system, time and work, speed and distance, profit and loss, percentage, mixture and allocation, simple and compound interest, clock. So, if you know your syllabus well, you will have to start channelizing days कि किस दिन आप कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक करोगे. You will have to make a timetable for yourself and every subject should have some slot in that particular timetable. Now you will have to make a study plan for yourself. सबसे पहले तो आपने अपना सब्जेक्ट देखना है. If you are appearing for OTA, you need to make a plan for general knowledge and English only. If you are also appearing for IMA, INA and AFA, you also need to make a plan for maths. अपने डे के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करिए. That let's say I have to devote 1 hour for vocabulary words or 1 hour for geography or 1 hour for history. And फिर अपने लिए sources देखिए. What are the best sources to study from? Is it YouTube? Is it some book? What do you need to do? You need to channelize your energy here. Focus on fundamentals. अब आपने सारा का सारा सिलेबस नहीं कर लेना हिस्ट्री की बुक उठा के. You need to know that if there are these 10 topics from where the question is asked, you need to do only those 10 topics. You don't have to complete the entire syllabus. You need to just pick up topics from where questions are frequently asked. You need to work hard as well as smart here. Improve subject proficiency. Let's say you have taken up science subject and you are doing physics there. अगर आप numerical solve करोगे, you also need to know the formulas and you need to know the basics. Only then you will be able to solve. तो fundamental basics पे ध्यान दो, फिर अपने questions solve करो and that is how you will become better at it. Stay updated with current affairs. If we talk about your 120 questions of general knowledge, इसमें around 15 questions you will get to see
from this area and it is not very hard to learn these. अगर आप consistently current affairs करेंगे तो you will be able to answer all of these questions there and it will become very easy for you to score 20% sectional cutoff, clear 20% sectional cutoff in your exam. Practice regularly. Now this is very important. अगर आपने एक टॉपिक एक हफ्ते में रिवाइज कर लिया है देन द नेक्स्ट डे व्हेन बिफोर यू स्टार्ट योर सेकंड टॉपिक आपने पिछले दिन की रिविजन करनी है फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour. This you have to do and on weekends you have to revise everything that you did during the last week. So weekends are for revision and the weekdays are for doing a new topic. So you need to make a proper plan of what you're doing and what time are you allocating for which subject. You need to stay calm and focused during preparation. बहुत बार ऐसा होगा जब आप पिछला टॉपिक रिवाइज करने लगोगे आपको ऐसा लगेगा कि वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आता. इट इज़ बिकॉज हमें मल्टीपल टाइम्स एक पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बी गुड एट इट. तो आपको बहुत बार एक टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी कॉन्फिडेंट फॉर इट. प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स. इसमें आप पिछले CDSE के एग्ज़ाम्स, UPSC के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, CAPF के पेपर्स, ये सारे पेपर्स सॉल्व करोगे. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो UPSC में आते हैं दे कैन ऑल्सो बी सीन इन CDS एग्ज़ाम एंड CAPF के क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलते हैं. एंड इट विल ऑल्सो गिव यू confidence when you will be able to solve questions from these two exams and you will get to have an idea of what kind of questions are asked. You need to take mock tests as well. अपने एग्ज़ाम से पहले आप mock test लीजिए जनरल नॉलेज का, इंग्लिश का, मैथ्स का एंड सी कि आप किस टॉपिक में लैग बिहाइंड कर रहे हो. कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है. आपकी रिटेंशन पावर कैसी है. यू नीड टू सी दीज थिंग्स. इससे आपको अपनी स्पीड भी पता चलेगी कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हो. You will also get an idea about your negative marking in this. You know कि आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है एंड आप कितना रिस्क ले सकते हो. 120 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करोगे कि अगर आपके अराउंड 10-15 क्वेश्चंस गलत हो भी जाते हैं तो इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर रिज़ल्ट. सो आप कितना रिस्क फैक्टर ले सकते हो ये आपको मॉक टेस्ट दे के ही पता चलेगा. Now you need to analyze your performance. पेपर सॉल्व करने के बाद, मॉक टेस्ट के बाद, रिविजन के बाद आप देखिए कि अब आपको लास्ट के कुछ डेज़ में व्हाट डू यू नीड टू डू. डू यू नीड टू डू करंट अफेयर्स, डू यू नीड टू रिवाइज पॉलिटी, व्हाट डू यू नीड टू डू एंड व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट फ्यू डेज़. अपना स्टडी प्लान अलग रखो और अपना रिविजन प्लान अलग रखो. इफ़ यू फील कि आप खुद से नहीं कर सकते हो सब कुछ, you should also seek guidance for the same. You can reach out to so many people who may guide you for how to study for CDS exam. And सिर्फ study करना important नहीं है. Here in this exam you also need to study smartly. You can't be doing everything. You need to do the most important topics. And since you are left with only 2 months now, these 2 months you have to utilize at the maximum to gain the most results. हर दिन के बाद, हर रिविज़न के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. वी विल ऑल्सो कम अप विद अ सीरीज़ ऑफ करंट अफेयर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिससे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम एंड यू विल गेट टू सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर वीडियोज़. और जब आप करंट अफेयर्स करेंगे आपने ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट लास्ट 6 months के करंट अफेयर्स तो ज़रूर करके जाओ. एंड इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो बियॉन्ड एंड कवर अप टू द करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 1 year. करंट अफेयर्स में आप डिफेंस एक्विजिशंस की बात करते हो,
current affairs related to defense, related to our nation, international current affairs. इसका बहुत important part होता है schemes which have been launched by the central government. If you want a separate video for schemes launched by the government, please comment in the comment section. फाइनल जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, यू नीड टू हैव एडिक्वेट स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम. अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, स्पेशली द ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स, एरर्स. सो यू नीड टू हैव अ फ्रेश माइंड बिफोर यू गो फॉर योर एग्ज़ाम. यू नीड टू ईट वेल, डोंट गो ऑन एन एम्प्टी स्टमक. बॉल पेन लेके जाना है आपने ब्लैक अपने साथ. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने OMR शीट को बहुत ध्यान से पढ़ना है. योर रोल नंबर्स, योर आंसर्स, यू नीड टू फिल इट वेरी प्रॉपरली, वेरी केयरफुली, बिकॉज सिर्फ आपकी पढ़ाई काम नहीं आएगी, उस दिन आप कितने कॉन्शियस हो, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर रिजल्ट. स्टे काम एंड कंपोज्ड नो मैटर वॉट. इंग्लिश का पेपर जैसा भी हुआ उसका बैगेज आप जीके के पेपर में कैरी नहीं करोगे, और जीके का पेपर जैसा भी होगा उसका बैगेज आप अपने मैथ्स के पेपर में कैरी नहीं करोगे. और एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले यू नीड टू रिवाइज अ लॉट. यू नीड टू हैव मल्टीपल रिविजन्स. यू नीड टू हैव मल्टीपल मॉक टेस्ट्स. एग्ज़ाम से पहले गो एंड चेक योर एग्जामिनेशन सेंटर ऑल्सो, ताकि उस दिन आपको कोई एंजाइटी ना हो एंड यू आर देयर ऑन टाइम. Carry your water bottles along, and whatever data is required at your centers, whatever proofs are required, सब पहले ही अरेंज करके रखना. अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है, इफ़ यू डोंट हैव योर डॉक्यूमेंट्स देयर तो आपको पहले से ही एंजाइटी होने लग जाती है, एंड उस वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है. सो दो चीज़ें हैं, एक तो आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, एंड दूसरी चीज़ एग्ज़ाम वाले दिन यू नीड टू स्लीप वेल, you need to eat well, and carry all your belongings, all your documents, so that you are calm and you have a good composure in your exam. Wishing you all the best for your preparation. अगर आपको preparation related कोई doubt हो तो reach out to us through the details mentioned in the caption.